नमस्ते सभी को। I hope you are enjoying your time in your Connect group. मुझे यकीन है कि आप लोग अपने कनेक्ट ग्रुप का समय का लुत्फ उठा रहे होंगे। I just would like to share a very small scripture that God has put on my heart. और प्रभु ने मेरे दिल में एक छोटा-सा वचन डाला है जो मैं आपके साथ बाँटना चाहूँगी। And I'm sure this scripture is going to be a blessing for you. और मुझे यकीन है कि ये वचन आपके लिए आशीष होगा। Before I begin, I just would like to pray. और शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। Come, let's close our eyes. क्यों ना हम लोग अपने आँखों को बंद करें। Father in heaven, we praise you and we thank you for this time. स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम आपका स्तुति करते और धन्यवाद करते। I pray while I'm preaching and while Priya is translating, you lead us through your Holy Spirit. और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे मैं प्रचार कर रही हूँ और प्रिया अनुवाद कर रही है, आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। And I pray, let this entire time of preaching and people receiving from your Holy Spirit, I pray, let it be a blessing. और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस प्रचार के समय में जहाँ पे लोग सुन रहे और स्वीकार कर रहे आपके वचन को, ये सब पर आशीषें लाए। I give you all the glory and honor. और सारा आदर और महिमा सब आपको देते हैं प्रभु। In Jesus' precious name we pray. और यीशु के मूल्यवान नाम से हम मांगते हैं। And we all said amen. और हम सब कहेंगे आमीन। Amen. Amen. Great. I'm going to share a scripture from the book of Mark, chapter 12. और मैं मार्कुस की किताब से 12वां अध्याय में से 29, 30 and 31. 29 से लेकर 31 तक का वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। Now, before I read the scripture, I just would like to give you a picture as to where this, where this happened, the story that I'm about to read. और वचन पढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कहानी जो है, ये जो घटना ये कहाँ पर हुई है। So we all know that Jesus had a habit of preaching in different places where crowd used to gather. और हम सबको पता है कि यीशु उन जगहों पर प्रचार करते थे जहाँ पे अलग-अलग तरीके की भीड़ जमा होती। So this was at one of the places where Jesus was teaching people. और ये ऐसी एक जगह है जहाँ पर यीशु लोगों को सिखा रहे थे। And there was a teacher of religious law who was also there in that crowd. और वहाँ पे जो है एक धार्मिक शिक्षक भी था जो उस गर्दी में मौजूद था। And he asked Jesus, out of all the he was asking Jesus, out of all the commandments, what is the most important commandment? और उसने यीशु से सवाल किया कि सारे आज्ञाओं में से सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सी है? To which Jesus answered, and I'm about to read what was his answer. और उसके प्रति यीशु ने जवाब दिया और मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि यीशु ने क्या बोला। It says, Jesus replied, और वचन कहता है यीशु ने जवाब दिया, the most important commandment is this. Listen, O Israel. और यीशु ने कहा, सुन इस्राएल, सबसे ज्यादा जरूरी आज्ञा ये है, The Lord our God is the one and only Lord. हमारा प्रभु परमेश्वर सिर्फ वो अकेला ही प्रभु परमेश्वर है। And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. और तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे बुद्धि से, मन से, आत्मा से और पूरे सामर्थ से जो है प्रेम करना है। The second is equally important. और दूसरा आज्ञा पहले के जैसा ही बहुत जरूरी है। Love your neighbor as yourself. अपने पड़ोसी से जैसे आप खुद से प्यार करोगे वैसे प्यार जताएं। Further it says, no other commandment is greater than these. और आगे कहता है कि इन दोनों से बढ़कर कोई भी आज्ञा नहीं है। So over here, Jesus says that the first and the most important thing Jesus basically wants us to know is that there is only one God. और यहाँ पर यीशु हमें ये बताता है कि सबसे पहले वो चाहते हैं कि हम ये जाने कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रभु है। No multiple gods. और अनेक प्रभुएं नहीं। There is only one God.
और वचन कहता है कि अनेक प्रभु नहीं है, And this is the same God who is in heaven whom we praise. और ये वही प्रभु है जो स्वर्ग में है, जिसकी हम स्तुति करते हैं। And we have to believe in this God through Jesus Christ. और इस प्रभु में यीशु के द्वारा हमें विश्वास रखना है। Now, in the worldly context, church, और दुनिया के मार्ग में अगर आप देखते हो, if I want to explain, it's like this. अगर मुझे समझाना है तो मैं कुछ ऐसे समझाऊंगी। All of us have only one father or one mother. हम सबके एक माता या एक पिता होते हैं। Scientifically, it is not possible for us to have multiple parents. और अगर आप वैज्ञानिक तौर से देखते हो तो एक इंसान के बहुत सारे माता पिता नहीं हो सकते। Now, you may have multiple people who will care for you just like your parents. और तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हारे माता पिता की तरह तुम्हारी ख्याल रखेंगे। But technically, there has to be only one father and one mother. लेकिन अगर आप प्राकृतिक रूप में देखोगे तो सिर्फ एक माता और एक पिता होते हैं। So, in the spiritual context as well, it is something like this. और आत्मिक तौर से भी कुछ ऐसा ही होता है। Actually, let me tell you, not something, it is exactly like that. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसा नहीं, यही होता है। There is only one God in heaven. और स्वर्ग में सिर्फ एक ही प्रभु है। And like I said before, we can only believe in him through Jesus Christ. और जैसे मैंने कहा, सिर्फ यीशु के द्वारा हम उनमें विश्वास रख सकते हैं। So that's the first thing. We have to know that there is only one God and not multiple gods. और ये पहली चीज है, हम सबको जानना होगा कि वहां पे सिर्फ एक ही प्रभु है और अनेक प्रभु नहीं है। Now, the second thing Jesus talks about is that we must love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. और दूसरा मुद्दा जो है, यीशु ये बोलते हैं कि हमारे प्रभु परमेश्वर को पूरे हृदय से, बुद्धि से, आत्मा से और सामर्थ्य से जो है प्यार करना चाहिए, प्रेम जताना चाहिए। Now, to explain this better, let me just give you an example. और इसे और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। Now, when you are in love with someone, like a girl with a boy or a boy with a girl, जब भी आप किसी से प्यार में होते हो, जैसे एक लड़का लड़की से या फिर एक लड़की लड़के से प्यार करती है, you would want your partner or your girlfriend or your boyfriend और आप चाहोगे कि आपका जो साथीदार है, आपका गर्लफ्रेंड या फिर जो बॉयफ्रेंड है, to completely be yours. आप चाहोगे कि वो सिर्फ आपके बने रहे। I mean, I'm sure you don't want your partner physically to be with you and think about somebody else when they are with you. और आप नहीं चाहोगे कि आपका जो साथीदार है वो शारीरिक रूप से आपके साथ है, लेकिन वो दिमागी तौर से किसी और के बारे में सोच रहा हो। Or say, for instance, they're physically with you, but their heart is somewhere else and they have a heart, going towards somebody else. या फिर ऐसे सोचो कि वो शारीरिक तौर से आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उनका दिल किसी और के पास है, वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं। So in the worldly life, it is our expectation that our partner should be completely ours. और दुनिया के तौर तरीकों में ये हमारा अपेक्षा होता है कि हमारा साथीदार सिर्फ हमारा बन के रह जाए। In every aspect, from heart, from mind, soul, body, after getting married though. और हर एक चीज में जैसे शादी के बाद हम सोचते हैं कि इनका दिल, दिमाग, इनका शरीर, आत्मा सब मेरे साथ ही रहे। It's the same when it comes to God church. और प्रभु के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कलीसिया। He doesn't want us to think about someone else. वो नहीं चाहता है कि हम किसी और के बारे में सोचें। And he doesn't want us to have a heart for somebody else and just keep talking about God. और वो नहीं चाहता है कि हम किसी और के बारे में सोच के सिर्फ प्रभु के बारे में बात करते रह जाए। So we must love our God with all our heart, mind, soul, and strength. तो इसीलिए हमें अपने प्रभु से अपने पूरे दिल से, दिमाग से, शरीर से और सामर्थ्य से प्यार करना चाहिए। In this passage, the third thing that Jesus is talking about is love your neighbor as yourself. और इस वचन में जो तीसरा चीज है जिसके बारे में प्रभु बात करते हैं वो ये है
कि अपने ही समान अपने पड़ोसी से प्रेम जताए। Now, when the scripture says, love your neighbor as yourself, I'm not talking about a neighbor who lives next door. और जब भी मैं बोल रही हूँ कि अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्यार जताए, मैं उस पड़ोसी के बारे में नहीं बात कर रही जो बाजू के घर में रहता हो। A neighbor is every other person who is in need. और एक पड़ोसी वो हर इंसान है जो जरूरतमंद होता है। The way you would do anything and everything in your power to protect yourself, to save yourself, और जो चीज आप खुद के लिए करोगे, खुद को बचाने के लिए या फिर खुद को सुरक्षित रखने के लिए, we need to do the same to others, the person who is in need. और हमें वही चीज दूसरों के लिए करना होगा जो जरूरतमंद होते हैं उनके लिए। That's what the scripture means. Love your neighbor as yourself. और यही वचन कहता है कि अपने ही समान अपने पड़ोसी से प्रेम जताओ। Now, if you'll see the scriptures that I read, everything comes down to love. और आप देखे रहोगे कि जो वचन मैंने पढ़ा है, सब कुछ अगर आप देखते हो तो सब प्यार में आके रुकता है। Why? The reason why I explained these three things is I want you to understand that love is the biggest commandment, and love can win everything. और मैंने ये तीनों चीज आपको इसलिए बताया कि आप ये जाने कि प्यार सबसे बड़ी आज्ञा है जो प्रभु चाहते हैं कि आप उसका पालन करें। Love is something that matters to God a lot. और प्यार एक ऐसी चीज है जो प्रभु के लिए बहुत मायने रखती है। That was the very reason why God sent his only begotten son to this earth, on this earth, so that he can die on the cross for us. और यही एक कारण है, प्यार के मारे ही प्रभु ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था कि वो हमारे लिए अपने जान को कुर्बान करे। So you can understand the importance of love for God. तो आप ये समझ पाओगे कि प्रभु के लिए प्यार कितनी बड़ी चीज है। Love is what God looks at, because when we love someone, we will do everything we can for them. और प्यार ही एक ऐसी चीज है जिसे प्रभु बहुत जरूरी समझता है, क्योंकि सिर्फ प्यार में ही आप लोगों के लिए चीजें कर सकते हो। So let us be the people who know that there is only one God, और हम लोग ऐसे लोग बने जो जाने कि सिर्फ एक ही प्रभु है, and that we must love that only God with all our heart, mind, soul, and strength. और हमें ये भी जानना है कि उस एक परमेश्वर से हम अपने दिमाग से, बुद्धि से, दिल से, शरीर से, आत्मा से और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उससे हम प्रेम करें। And let us also know, let us also be the people that we love our neighbor as we love ourselves. और हम ऐसे भी लोग बने जो अपने पड़ोसी से खुद के समान प्रेम रखते हो। Why don't we close our eyes? क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें। God, I really thank you for these wonderful scriptures that you have given me tonight. प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचनों के लिए जो आपने मुझे आज रात दिया है। I really thank you for the revelation and the words that you have spoken through me. और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ जो भी वचन आपने मेरे द्वारा बोला है उसके लिए। I really pray, Father Lord God, and I really believe in my heart that your Holy Spirit has touched people's heart tonight. और प्रभु मुझे यकीन है कि आज रात पवित्र आत्मा ने लोगों के दिलों को छुआ है। And I pray, Master, let us be the people who understand these commandments and who understand what love is, and let us lead a life like that. और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम ऐसे लोग बने जो प्यार को जाने, आपकी आज्ञा को जाने और उस हिसाब से अपने जीवन को चलाएं। Thank you for touching people's heart tonight. और आज रात आपने लोगों के दिलों को छुआ, इसलिए धन्यवाद करते हैं। We give you all the glory and all the honor. हम सारा आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। In Jesus' precious name we pray. और यीशु के मूल्यवान नाम से हम मांगते हैं। Amen. 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 Great. We are very excited to see you next Sunday. We all know that we are meeting next Sunday. और अगले रविवार आप सबसे मिलने के लिए हम बहुत ही उत्साहित हैं। आप सब जानते हो कि अगले रविवार हम मिलने वाले एक दूसरे से। Trust me, you all have no idea how much excited we are to meet physically at church. और यकीन कीजिए आप सबको पता नहीं है कि हम लोग कितने उत्साहित हैं शारीरिक तौर से आपसे मिलने के लिए। It's been such a long time that we could not meet physically. We could not have church physically.
और कितना समय हो गया है कि हम लोग शारीरिक तौर से एक दूसरे से मिल नहीं पाए और एक दूसरे के साथ कलीसिया में रह नहीं पाए। So I would like to tell you that get excited, get ready for church next Sunday. तो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि अगले रविवार कलीसिया के लिए तैयार रहिए और उत्साहित रहिए। Make sure that there are no other plans on Sunday. The only thing that you have to do is come to church and meet us. और ये तय रखना कि अगले रविवार के लिए कोई भी आप योजना ना बनाएं, आप कलीसिया आए और प्रभु के साथ प्रभु की उपस्थिति में हमारे साथ रहे। It is going to be super fun. और ये बहुत अच्छा होगा। Take care. God bless you all. और आप लोग देखभाल करना खुद का, प्रभु आपको आशीष दे And enjoy your connect. और आपके कनेक्ट ग्रुप का मजा उठाए।